Hello everyone. Now today we will start with the chapter number 6 of chemistry. Okay, and the chapter name is thermodynamics. Okay, the word thermodynamics, it is derived from the two Greek words, and that two Greek words are therm and dynamics. Okay, now the word therm means, what does it mean? It means heat, and dynamics means force. Right, now we know that there are different forms of energy: kinetic energy, potential energy, electrical energy, mechanical energy, right? And these all energies, they appear in one common form. They all appear in one common form, and that one common form in which energy appears, that common form of energy is heat. ठीक है, मीन्स भी एनर्जीज है, in which way it appears to we people, it appears in the form of heat. Right, so therm means heat and dynamics means force. So that branch of science which deals with the study of different forms of energy. So science is वो branch where we study about the different forms of energies and the interconversion of different energies. ठीक है, so that is known as thermodynamics. हम different forms of energy और उनकी interconversion के बाद is known as thermodynamics. Now there are some basic terms in thermodynamics. Now that basic terms of thermodynamics are system and surrounding. Right, now what is system? Is surrounding. Now consider that if this is test tube, right, and here are some tubes A and B, right? Two reactants means इनकी reaction हो रही है इस test tube में. So जो reaction होगी इस test tube होगी, so we will observe this test tube. इस test को ही observe करेंगे that what is happening inside it. ठीक है ना, मीन्स जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट कर रही हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर, सो वी विल ऑब्जर्व दिस टेस्ट ट्यूब ओनली. सो दैट पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, जिसमें रिएक्शन हो रही है, जो हम रिएक्शन या कुछ भी चेंज हम करवाना चाह रहे हैं, तो जिस पार्ट पर हम वो काम कर रहे हैं, सो दैट पार्ट नोन एज सिस्टम. ठीक है, मीन्स वो पार्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, बोलते हैं सिस्टम. और जो अदर पार्ट है उस सिस्टम के अलावा जो उसका आउटर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग. ओके, मीन्स सो दैट पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ओके, अंडर विच टू वी आर स्टडिंग, सम चेंजेस आर बीइंग गोइंग ऑन, सो दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अ सिस्टम, and the rest of the part which is out of system, it is known as surrounding. Right, that part of the universe which is under observation, and surrounding is the remaining portion of universe which is not the part of system. मीन्स जो टेस्ट ट्यूब, जो बीकर, जिस फ्लास्क में हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम. जो बाकी आउट पार्ट है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स. So what is universe? System and surrounding, when they combine, when they get together, it forms universe. और universe का वो part which is under observation, that is system, right? And part is surrounding. Okay. Now see, जो system, it can be homogeneous, system can be heterogeneous. ठीक है ना, homogeneous भी हो सकता है और heterogeneous भी हो सकता है. Homo means same, right? Homo means same. ठीक है, तो जो होता है इसमें एक ही फेज होता है. होमोजेनस सिस्टम में इसमें एक फेज होता है, और जो हेट्रोजेनस सिस्टम है इसमें दो या दो से ज़्यादा फेज. होमो मीन्स सेम होता है, मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा जो उस पार्ट में रिएक्शन हुई जिनकी भी, तो वो आपस में अच्छे से उनकी जो हमें कंपोजिशन है, जो भी उनके अपीयरेंस है, वो इक्वल होगी. होमोजेनस सिस्टम है, इट मीन्स हमें सिर्फ एक ही, ठीक है, फिजिकल और कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन थ्रू क्या होंगी? सेम रहेंगी. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एयर. ठीक है ना, देयर आर नंबर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2 मीन्स गैसेज आर प्रेजेंट इन एयर, राइट. बट जो है अपीयर इज होमोजीनस. ठीक है ना, जो एयर है वो कैसी है? होमोजीनस है. ठीक है, मीन्स डिफरेंट गैसेज आर देयर, बट दैट जो एयर है दैट अपीयर्स होमोजीनस. मीन्स ऐसे लगता है कि एक ही फेज है, इसमें अलग अलग कोई गैस नहीं है. ठीक है, मीन्स इट अपीयर्स होमोजीनस. ठीक है ना, फेज एक ही फेज लगता है. But heterogeneous is that which consists of two or more phases, right? Means each part has different physical and chemical properties. For example, water with ice floating in it. ठीक है ना, मीन्स वाटर है और उसमें आइस रखी हुई है. ठीक है, तो आइस अगर ये वाटर पे, सो दीज आर टू डिफरेंट फेज. वाटर स्टेट और जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में, मीन्स डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है.
ठीक है, मीन्स स्टेट्स उनकी अलग अलग है, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, उनकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी। ओके, सो दिस इज homogeneous and heterogeneous system. Okay, now next is the classification of the system on the basis of movement of matter and energy. ठीक है ना, मैटर और एनर्जी की मूवमेंट, इन दोनों की मूवमेंट के कारण जो सिस्टम है उनको कैसे क्लासीफाई कर रखा है, राइट। सो देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मैटर एंड एनर्जी की मूवमेंट। ठीक है ना, सो व्हाट आर दैट 3 क्लासिफिकेशंस? First one is open system, second one is closed system, and third one is isolated system. Okay, now what is open system? ठीक है ना, देखो ओपन सिस्टम, इफ दिस इज पैन, है ना, यहाँ पे पैन पड़ा है और उसमें क्या रखा है, वाटर। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट। तब क्या होगा, जो इट विल गेट इवेपोरेटेड, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और किस में चेंज होगा, वाटर वेपर्स में। मीन्स जो इसमें मैटर ले रखा है वो क्या कर रहा है, अब कर रहा है। ठीक है ना, मीन्स मैटर है वो कहाँ पे जा रहा है, ये तो हमारा पैन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो तो हमारा सिस्टम है, बट द आउटर पार्ट इज सराउंडिंग। मीन्स जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर कहाँ पे जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, राइट। मीन्स जो मैटर है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, और साथ में क्या होगा, जो हीट है वो भी सिस्टम से कहाँ पे जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। मीन्स जो ओपन सिस्टम है वहाँ पे देयर एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी। ठीक है ना, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है जिस सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है ना, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? देखो लाइक दिस इज प्रेशर कुकर, मीन्स इसमें जो भी सब्जी जो भी रखी है इसमें पकने के लिए, एंड एज वाटर इज एडेड टू इट। ठीक है ना, उसके साथ वाटर भी ऐड कर रखा है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स व्हेन जब स्टीम बनती है तो जो प्रेशर वो कैसे रिलीज होता है, द हीट कम्स आउट ऑफ द प्रेशर कुकर, बट जो मैटर हमने इसमें डाल रखा है दैट रिमेन्स इन द कुकर ओनली, इन द प्रेशर कुकर ओनली। मीन्स जो यहाँ पर मैटर है वो नहीं एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल हीट है जो वो सिस्टम से कहाँ पे जा रही है, सराउंडिंग में। सो जो क्लोज्ड सिस्टम है, इन दैट ओनली हीट एक्सचेंजेस एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। जो ओपन सिस्टम है उसमें दोनों एक्सचेंज होते हैं, मैटर एज वेल एज एनर्जी, बट जो क्लोज्ड सिस्टम है उसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, नो एक्सचेंज ऑफ energy, sorry, matter, right? Now the third system is isolated system. Isolated system में क्या होता है, here example is of thermos flask. देखो thermos flask में like here hot coffee or tea is being put in this thermos flask. So that coffee which we are putting in thermos flask that remains hot. मीन्स वो गर्म की गर्म ही रहती है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी जो हीट है उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस थर्मस फ्लास्क इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड। सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, ना ही कोई हीट बाहर जाती है और ना ही हीट अंदर आती है। ठीक है ना, और ना ही कोई मैटर अंदर जाता है ना ही बाहर आता है। मीन्स यहाँ पे जो हीट और मैटर दोनों का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। सो इन द आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पे थर्मस फ्लास्क जो आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मीन्स यहाँ पर ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, right? So there are 3 classification of the system is there on the basis of the movement of the matter or energy. Open system में हीट एनर्जी और मैटर दोनों सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम एक्सचेंज हो सकती है, मूव कर सकती है, तो वो ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ जो एनर्जी है वो मूव कर सकती है, ठीक है, बट जो मैटर है दैट कांट एक्सचेंज। And in isolated, neither energy can be exchanged nor matter. So there is no movement of matter or energy in case of the isolated system. Clear?
The next topic is macroscopic properties of the system. Okay, now what is macroscopic property? Now there are two type of approaches, microscopic approach and macroscopic approach. Okay, but the approach that we use in thermodynamics, it is macroscopic approach. Now micro means small, okay, macro means something that we deal in bulk, means large quantity में. जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो मीन्स लार्ज साइज, लार्ज क्वांटिटी, बल्क में, ठीक है. तो माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं दैट स्टडी इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल. जो माइक्रोस्कोपिक है वहाँ पे जो स्टडी है दैट इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स. Right, now how it focused on individual particles. For example, if this is the system, right, if this is the system and in this system there are 10,000 number of particles, ठीक है ना, इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 10,000, ठीक है. और अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे ये जो 10,000 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, इन 10,000 पार्टिकल्स का हम बिहेवियर स्टडी करेंगे. फिर उस बिहेवियर को मीन्स हर एक पार्टिकल के बिहेवियर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना, मीन्स उनकी हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे. तो ऐसे अगर 10,000 पार्टिकल्स है फिर उनके अकेले की स्टडी करेंगे, फिर उनके बिहेवियर को जो भी हमारे पास स्टडी आएगी फिर उसको एडअप करेंगे. सो नाउ दिस विल टेक अप लॉन्ग टाइम, ठीक है ना. मीन्स इसको हम और कौन सा प्रोसेस कहते हैं, दिस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिस्टिकल अप्रोच. स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल को का बिहेवियर स्टडी करते हैं, फिर उसके बिहेवियर को क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं, समेशन कर देते हैं उनकी. सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है. बट जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसमें हम क्या करते हैं, देयर वी डजंट स्टडी द इंडिविजुअल पार्टिकल, राइट. नाउ इफ दिस इज द सिस्टम वेयर वी हैव 10,000 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर हमने मैक्रोस्कोपिक अप्रोच करनी तो हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम में से सर्टेन क्वांटिटी ऑफ जो हमारे पास पार्टिकल्स है उनकी ले लेंगे और फिर उसको क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे. फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे सिस्टम के लिए जो एक जनरलाइजेशन है वो कर लेंगे, दैट दिस होल सिस्टम विल बी लाइक दिस. मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक है उसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स मीन्स हर एक पार्टिकल को स्टडी करके फिर उसकी समेशन करते हैं. बट मैक्रो मीन्स बल्क, जहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ जो केमिकल स्पीशीज़ है उनके साथ डील करते हैं. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम में से सर्टेन क्वांटिटी जो है उसकी कंसीडर करके फिर उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वी जनरलाइज दैट बिहेवियर फॉर द होल सिस्टम, राइट. और जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है इट वर्क्स ऑन to study the behavior of individual particle, but here we deal with certain quantity, right. So this is microscopic approach, this is macroscopic approach, and this approach is used in thermodynamics. जो macroscopic approach है इस approach को हम thermodynamics में use करते हैं. Okay, so now what is macroscopic approach? So thermodynamics deals with matter in terms of bulk behavior, means large quantity में जो behavior है जो उसको deal करता है, and that bulk behavior is related to which large number of chemical species that can be atoms, molecules or ions. Okay, so the property of the atom which arise from the bulk behavior of the matter, ठीक है ना. मीन्स जब हम बल्क बिहेवियर, ठीक है ना, एक पूरे सिस्टम में से हम सर्टेन क्वांटिटी है जो मैटर की उसको कंसीडर करके उसकी स्टडी करते हैं और फिर उससे हम पूरे सिस्टम के लिए उस बिहेवियर की जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है. तो वो प्रॉपर्टी विच अराइजेज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर से, ठीक है ना. सो दैट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एंड दैट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. ओके, दीज ऑल आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर मेजरेबल, मीन्स हम इनको मेजर कर सकते हैं. ओके, दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज. लाइक इफ आई आस्क यू टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द रूम, सो देयर वी उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और हम उससे टेम्परेचर या प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं, राइट. अगर मैं कहूँ दैट व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ दिस रूम, ठीक है ना, रूम की अगर आपसे एंट्रोपी पूछूँ तो उसके लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ले तो उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. तो वो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम डायरेक्टली मीन्स इजीली फाइंड कर सकते हैं. इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, और मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है. और हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव,
ठीक है. सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depend on the amount or size of the substance. ठीक है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो कौन सी होती हैं? वो प्रॉपर्टीज whose value depend on the amount or size of the substance. Right? Now one of the example is mass. ठीक है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हम सिस्टम में कितना साइज, कितनी अमाउंट ऑफ उस सब्सटेंस को ले रहे हैं. ठीक है ना. मीन्स हम उसको सिस्टम में उसकी हम अगर किसी भी चीज़ की जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उसको 5 मीन्स उसका ग्राम, उसको 5 ग्राम ले रहे हैं या उसको 50 ग्राम ले रहे हैं. ठीक है ना. मीन्स जो प्रॉपर्टी सिस्टम में किसके ऊपर डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम सब्सटेंस की कितनी अमाउंट ले रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. मीन्स जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर नहीं डिपेंड करती वो प्रॉपर्टीज होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. देखो मैं जनरली आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड. मीन्स हम डेली लाइफ में लाइक अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, इफ़ वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ 40 kg, मीन्स एक बच्चा जिसका वेट है 40 kg और एक मैन हुज वेट इज 70 kg. ठीक है ना. मीन्स जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर था वो कितना है? 98.4. फिर चाहे हम 20 kg जो बच्चा उसका वेट देखें, चाहे फिर जो हम 50 kg मैन है उसका वेट देखें, तो जो उन दोनों वेट चाहे उनका कम ज़्यादा है, बट जो टेम्परेचर होगा दोनों का वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? 98.4. ठीक है ना. मीन्स जो टेम्परेचर है उसके ऊपर किस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि उस जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट, उसकी वेट कितना है. ठीक है ना. चाहे हम 20 kg बच्चे उसका वेट देख लें, चाहे हम 40 kg अगर कोई मैन है उसका वेट देख लें, तो उनके वेट के कारण उनके टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो सभी का क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है ना. मीन्स तो वो प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करे उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. और इंटेंसिव की एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर, प्रेशर, राइट, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी. तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर नहीं डिपेंड करती. इट जस्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि हमने जो सब्सटेंस ले रखा है उसकी नेचर कैसी है और कितनी अमाउंट में ले रखा है इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता. सो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे कि हमने उस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट ले रखा है या उस सब्सटेंस का कितना साइज ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी स्टडी होगी उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी डिफरेंट. सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और उसकी एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव. देखो अभी यहाँ पे मैंने मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट. बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ये किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का. एंड डेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मीन्स अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करें, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमारा जो रिजल्ट है दैट ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना. मीन्स अगर हम दो, इफ इट इज -2 और एंड अपॉन -1, मीन्स हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया, तब हमारा आंसर क्या आएगा? +2. जिन्हें मीन्स जो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव. इन द सेम है यहाँ पे अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करें देन वी ऑलवेज गेट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. Okay, so in this we had just read about the introduction, what is thermodynamics, what are their basic terms, right? System, surroundings, open system, closed system, isolated system, and their macroscopic properties. Okay, thank you.